Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 6 home science class, and today I'm going to start chapter number 12, first aid, accidents and cure. First of all, what is the meaning of first aid? We are living in the age of science. In this age, we are more prone to accidents. जितना ही हम साइंस के तौर तरीके अपना रहे हैं उतने ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते जा रहे हैं. एवरीवेयर पीपल आर डिगिंग डीपर, बिल्डिंग हायर एंड मूविंग फास्टर, fainting inside a smoke-filled, ill-ventilated factory, getting a few fingers crushed out of shape by the toothed wheel of a machine, or being knocked out of one's sense with multiple injuries and broken bones by a rashing driven car are everyday occurrences of city life. ये आम बात हो चुकी है. कहीं भी रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई बिल्डिंग के नीचे दब के मर जाता है, कोई दब जाता है. इस तरह के एक्सीडेंटल केस बहुत आम हो गए हैं. तो द इमीडिएट हेल्प रेंडर्ड टू अ पर्सन in case of injuries and sudden illness before the arrival of the doctor is known by self-explanatory terms as first aid. तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है या कुछ भी है, तो उसको जो सबसे पहली सुविधा दी जाती है, सबसे पहला जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड सर्व्स अ टेम्परेरी मेजर टू एलिवेट पेन, prevent aggravation of injury, promote recovery and save the life of the individual injured person. कभी कभी आप फर्स्ट एड दे करके किसी की जान भी बचा सकते हो. Therefore the knowledge of first aid is very essential for every family member. At home and outside of home, every man has to do some work, easy and hard, dangerous और pleasing. हर जगह ये कुछ न कुछ घटनाएं तो लगी रहती हैं, इसलिए हर जगह पे ये फर्स्ट एड बहुत ही काम आता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए फर्स्ट एड के? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट? इमीडिएट हेल्प रेंडर्ड टू द पर्सन wounded or injured is known as first aid. Second is first aid is rendered by the person present on the scene of occurrence. The main purpose of rendering first aid is checking aggravation of the injury and thus the life of the person injured. Only the basic medicines are used while rendering first aid. Need भी होनी चाहिए फर्स्ट एड की. When someone has deliberately or accidentally consumed poison, when someone has consumed alcohol in excess, when someone has fainted, when there is sprain or broken bone, when someone is burned, when someone is drowned and water has been filled in his stomach, when there is excessive bleeding, when there is breathing trouble. तो ये कुछ चीज़ें हैं जब आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स: sympathetic and affectionate, patient and insightful, dexterous, resourceful, having discriminating abilities, confident and smiling, explicit, physically and mentally alert. कि आप खुद भी आपके अंदर पेशेंस, ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंजर्ड पर्सन है उसको देख के आप उससे ज़्यादा परेशान हो जाओ, घबरा जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप अगर फर्स्ट एडर हो तो आप थोड़े से सिंपैथी हो आपके अंदर, आप थोड़े से पेशेंस वाले हो और घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको, कॉन्फिडेंट हो आप, स्माइलिंग फेस हो आपका, और आप हर एक चीज़ के लिए फिजिकली एंड मेंटली अलर्ट हो. काइंड्स ऑफ बैंडेजेस अभी देख लेते हैं. तो सबसे पहला आता है आपका ट्रायंगुलर बैंडेज. ट्रायंगुलर बैंडेजेस आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द organs. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर exerting the pressure over the organs. For making triangular bandages, 1 meter long and 1 meter broad marking or latta is taken and 2 edges of cloth are united in such a way that the triangle of cloth is formed. आप देख सकते हो डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस तरीके से ट्रायंगुलर बैंडेज बनाया जाता है. ठीक है. फिर आता है आपका रोलर और राउंड बैंडेज. रोलर बैंडेज इज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, shape and
Trying method are also called round bandages. On this, the meshed bandages are based. These bandages have different length and breadth according to their use. बी नंबर आप देख लो, ये है रोलर बैंडेज आपका, एक तरीके से ट्रायंगल ही बना के आपने उसको एक टर्न दे दिया। फिर आपका ब्रॉड बैंडेज। ब्रॉड बैंडेज इज प्रिपेयर्ड बाय बेंडिंग कॉर्नर्स फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द बेस। In diagram, the C number is broad bandage, and D thin bandage. Thin bandage is prepared by folding broad bandages from the center. जो broad bandage आपने बनाया था उसी को सेंटर से एक बार और आपने फोल्ड कर दिया तो ये आपका बन जाता है थिन बैंडेज। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बैंडेज। प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए बैंडेजेस में? द बैंडेज शुड नाइदर बी टू टाइट नॉट टू लूज, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। द हैंड्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर टाइंग द बैंडेज। द बैंडेज शुड बी नीट एंड क्लीन एंड जर्म फ्री। बेनिफिट्स क्या हैं बैंडेजेस के? द मेडिसिन अप्लाइड रिमेन्स इंटैक्ट टू द इंजरी, कि आपने जो भी मेडिसिन अप्लाई करी है वो आपकी इंजरी के आसपास ही रहता है। इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। देयर इज़ नो चांस ऑफ वाउंडिंग बिकमिंग इन्फेक्टेड बाय जर्म्स एंड डस्ट, कि अगर आपने उस पर बैंडेज लगा दिया है तो वहाँ पे आप देखो कोई भी जर्म्स नहीं अटैक कर पाएंगे, कोई भी डस्ट नहीं पहुँच पाएगा। द पेन एलिवेट्स, और दर्द भी आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ कॉमन इंजरीज एंड देयर क्योर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका रेबीज़ और बाइटिंग बाय अ मैड डॉग। पागल कुत्ते ने अगर काट लिया है तो उससे रेबीज़ नामक बीमारी हो जाती है। Rabies is the most serious disease spread by animals. This fatal disease is caused by a virus transmitted to the body of the man by the dogs, jackals, voles and monkeys. ये इस तरह के कुछ एनिमल्स अगर काट लेते हैं तो इससे रेबीज़ हो जाता है। मैन बिकम इन्फेक्टेड when he is bitten or scratched by an animal suffering from rabies. A mad dog has the highest possibilities as a carrier of rabies. सिम्टम्स क्या हैं अगर किसी को रेबीज़ हो गया है? द पेशेंट लॉसेस इज मेंटल इक्विलिब्रियम एंड बिहेव स्ट्रेंजली, बिल्कुल अजीबोगरीब बिहेवियर हो जाता है। ही बार्क्स लाइक अ डॉग एंड फियर्स फ्रॉम वाटर, वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है और पानी से डर, एक हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसके अंदर। ड्यू टू थ्रोट पेन ही कैन नॉट स्वॉलो द फूड। दिस डिजीज इज मैन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। ट्रीटमेंट क्या है? The Pasteur treatment was first introduced in 1885 when Pasteur found that the rabies virus existing in the spinal cord of mad dog could be gradually weakened in the laboratory until it no longer caused death. The patient first received an injection of the weakest virus. Then day by day he receives injections of a stronger and stronger virus, until after 2 or 3 weeks the patient's resistance to the disease has increased so much that he becomes immune and can resist the strongest virus from the mad dog. Second is burns and scalds. Burn is a specific injury caused by dry heat and scalds is the injury caused by the moist heat. बर्न कैसे होता है? जैसे कि आप इलेक्ट्रिक करंट से जल जाओ और हॉट मेटल वगैरह से, फ्रिक्शन से या कोरोसिव केमिकल्स वगैरह से आप अगर जलते हो, दैट इज़ कॉल्ड बर्न। और अगर आप किसी लिक्विड चीज़ों से, आप बॉइलिंग वाटर से, हाँ स्टीम से, हॉट ऑयल से, इस तरीके से अगर आप जलते हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्कैल्ड। ट्रीटमेंट क्या है? व्हेन द बर्न्स और स्कैल्ड कॉजेज ब्लिस्टर्स they should be dealt with very carefully and should not be rubbed in such a manner that there is danger of their bursting. कभी भी अगर छाले पड़ जाए तो उनको रगड़ना नहीं चाहिए। Clothing should never be removed as the area of burns or scald, including the clothing, or it is sterile for a short period. The burnt or scald body part should be covered by sterile cotton along with the burnt cloth wrapping. जलने का जो कपड़ा आता है उसको लपेट के तब उसके ऊपर कोई भी आप कॉटन से कवर कर सकते हो, कॉटन के कपड़े से। The affected part should be kept in bandages along with support of heavy cotton pads. थर्ड है आपका इंटरिंग ऑफ एनीथिंग इनसाइड द ईयर, कभी कान में कुछ चला गया
तो रेमेडी क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको टेक मस्टर्ड ऑयल, वार्म इट एंड पोर इनटू द ईयर, कान में डालिए गर्म करके। आस्क द पेशेंट टू कीप हिज ईयर अपवर्ड्स, आफ्टर अ वाइल कीप द ईयर डाउनवर्ड्स and the mosquito or any other insect who slip out with the mustard oil, और जो भी चीज़ें मस्कीटो हो या कुछ भी हो वो तेल के साथ में बाहर चला आता है। रेमेडी इंटरिंग ऑफ एनीथिंग इनसाइड द नोज़, नाक में अगर कुछ चीज़ें चली गई लाइक बीट हो गया, ग्राम हो गया, वीट हो गया, तो क्या आपको सिम्टम्स से, पहली बात तो चिल्ड्रन सीम्स पजल्ड, दे इंसर्ट देयर फिंगर अगेन एंड अगेन इनटू द नोज, और इससे वो चीज़ें और भी अंदर चली जाती हैं। रेमेडी अरेंज टू टेक ब्रीथ फ्रॉम माउथ, पहले तो उनसे बोली मुंह से सांस लें। गेट हिम स्मेल्ड टोबैको, इफ़ ही स्नीजेस द आर्टिकल विल कम आउट, अगर उनको छींक आई तो वो आर्टिकल अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ड्रोनिंग, sometimes people are drowned while swimming or accidentally. In this, eventually every possible attempt must be made to bring drowning person out of water. Remedy है इसका clean mud etc. from the face and body of the person. सबसे पहले तो जो भी मड वगैरह लग गई हैं उनको आप साफ करिए। The person drowned must be laid stomach downward. In this posture, the water filled in the stomach would come out. Finally, when all the water has come out, the patient must be given artificial respiration. 6 is stinging by honey bee or wasp. अगर किसी कीड़े ने आपको काट लिया, इंसेक्ट नहीं कीड़े ने, तो इसके लिए रेमेडी है, सबसे पहले तो स्टिंग शुड बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक निडल। सबसे पहले उनके डंक को आप निकालो। Spirit must be rubbed at the place of stinging. We must also rub washing soda or iron ash. Application of lime or lemon juice helps in the reduction of pain and swelling. 7 is strangling by scorpions. कोई scorpions अगर काट ले तो symptoms है क्या, acute pain and burning sensation. There is a feeling of stinging in entire body, feeling of vomiting, breathing becomes rapid and heavier. रेमेडी क्या कर सकते हैं इसके लिए, स्टंग स्पॉट मस्ट बी टाइड विद बैंडेजेस सो दैट पॉइजन डज नॉट स्प्रेड बाय फर्दर। जहाँ भी कहीं भी कट हो उसके ऊपर से खूब टाइट बैंडेज बांधना चाहिए जिससे कि वो जो जहर है वो ऊपर तक ना पहुँच सके। आइस मस्ट बी रब्ड एट द अफेक्टेड स्पॉट, और जहाँ पे अफेक्टेड स्पॉट है वहाँ पे आइस को खूब रब करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्नेक बाइटिंग। बाइटिंग अ स्नेक पॉइजन स्नेक मे बी डेंजरस फॉर लाइफ। द पॉइजन में स्प्रेड इन द होल ऑफ द बॉडी कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन बिटन। जिसको भी काट लिया है वो कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं, एक्सेसिव एंड अनबेरेबल पेन एंड स्वेलिंग। स्किन एट द प्लेस ऑफ बाइटिंग बिकम्स ब्लूइश और ब्लैकिश, जिस जगह पे काटा है वो एरिया पूरा ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाता है। और सलाइवा कम्स आउट ऑफ द माउथ, मुंह से सलाइवा बाहर आने लगता है। ब्रीदिंग बिकम्स स्लोअर, आईलिड्स बिकम श्रंक, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, बोलने में भी असुविधा होती है। रेमेडी क्या कर सकते हैं इसके लिए, इफ़ द बाइट is on a limb, a slight constriction between the bitten part and the heart as near to the trunk as possible should be applied to delay the poison entering to the circulation of blood. सबसे पहले उस पोर्शन को थोड़ा सा कट करके या बांध के टाइटली ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन तक ना पहुंच पाए, ऐसा उसको करना चाहिए। द कंस्ट्रिक्शन शुड बी रिलैक्स्ड फॉर अ पीरियड of 1 minute once in 20 minutes and retightened. After washing the wound well, the bitten part should be kept below the level and of the heart and bled by a few incisions with a clean knife. The wound should be washed with potassium permanganate. The patient should be kept calm and warm and given stimulants. Artificial breathing should be given if patient's breathing fails. Immediate medical aid should be provided. तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट एड, जो भी आपके कुछ नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो भी कॉमन इंजरीज़ हैं उनके बारे में देखा।
Hope you understand the chapter, and if you have any problem you can ask me. Take care. Goodbye.